2 ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर x आपके पास मीन्स राइट साइड पे आपके पास साइन या कॉस की टर्म आ जाए, साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी, तब आप क्या करोगे? देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ओवर एफ डी स्क्वायर साइन ax प्लस बी और कॉज ऑफ ax प्लस बी। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है? यू हैव टू सब्सटीट्यूट। अब वहाँ पे हमने d को a पुट किया था, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप d स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप d स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे। अगर आपके पास इफ़ वी गेट, अगर आप सॉल्व करते करते आपके पास d प्लस ए आ जाए या d माइनस ए आ जाए, तो यू शुड डू रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करोगे, राइट। केस ऑफ फेल्यूअर वैसे ही चलेगा जैसे रूल 1 में चला था। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, मीन्स अगर 1 ओवर 0 बन जाता है, तो आप डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर का और बाहर x लगाओगे। अगर 2 टाइम्स करोगे तो बाहर 2 बार ही x लगेगा, मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 बार डेरिवेटिव करोगे सेम इसी तरह से चलेगा, राइट। आई एम नॉट राइटिंग केस ऑफ फेल्यूअर, वो वैसे ही चलेगा। Now question is d square y over dx square minus 2 dy over dx plus 5y is equal to sin 3x. Now first step is we have to write it in the symbolic form. तो क्या बनेगा? d square minus 2d plus 5 whole y is equal to sin 3x. Right? Now auxiliary equation is हम y नहीं लिखेंगे, तो d square minus 2d plus 5 is equal to 0. Right, now we have to find the roots. तो रूट्स के लिए वी कैन यूज़ द फॉर्मूला, क्योंकि फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नाउ हेयर आपके पास इक्वेशन में a इज़ 1, b इज़ माइनस 2 एंड c इज़ 5। These are coefficients of d square, d and constant term, right? Now we'll put the value d is equal to, now minus minus 2 plus minus under root minus 2 square 4 minus 4 into 1 into 5 over 2 into 1. So this becomes 2 plus minus under root 4 minus 5 4 is a 20 over 2, which is equal to 2 plus minus, now 4 minus 20. What is this? You have to write 16. It is minus root 16. So 2 plus minus, because minus in the root, so it becomes 4 iota over 2. So we get 1 plus minus 2 iota. So these are complex roots. We have to write the complementary function. Complementary function is equal to C1. First of all, we have to write for one real part and imaginary part, right? So for real part it is e raised to power x c1 cos 2x plus c2 sin 2x, right? We will write real part here and here we will write the imaginary part. Now we will find particular integral. Particular integral is 1 over whatever will be the auxiliary equation, d square minus 2d plus 5. 1 over d square minus 2d plus 5. Now on the right side it is sin 3x. Now what is the rule? d square, we put d square is equal to minus a square, means minus 3 square. It means we have to put minus 9. डोंट टेक इट लाइक दिस कि माइनस और 3 इकट्ठा है तो हम 9 बना देंगे। इट इज़ माइनस 3 स्क्वायर मीन्स माइनस 9। यही मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। इट बिकम्स 1 ओवर, नाउ डी स्क्वायर इज, हमने सिर्फ डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, नॉट ऑफ डी। डी की वैल्यू नहीं पुट होएगी क्योंकि हमारे पास डी स्क्वायर के लिए ही रूल है, नॉट फॉर डी। नाउ इट इज़ माइनस 9 माइनस 2d प्लस 5 साइन 3x.
right? It becomes 1 over, now minus 9 plus 5, it is minus 4, minus 2d minus 4 sine 3x. Now this becomes, we will take minus common and 2 common, d plus 2 sine 3x. Now अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर d plus 2 या कुछ ऐसा आ जाए तो we will do rationalization, so we will do rationalization 1 over d plus 2. whenever we rationalize we will change the sign. यहाँ पे प्लस है तो rationalize के लिए d minus 2 multiply and divide हो जाएगा into sine 3x. So it becomes minus 1 over 2 d minus 2. Now denominator, there is a formula a plus b, a minus b means a square minus b square, d square minus 2 square, right? Into sine 3x. So this is equal to minus 1 over 2 d minus 2 d square minus 4 into sine 3x. So minus 1 over 2 d minus 2. So what is d square? D square is minus 9. So we'll put here minus 9 minus 4 sine 3x. It becomes 13 minus 13 into 2, 26, minus and minus become plus. So it is like this, d minus 2 to sine 3x. Now see, whenever d, capital D is in the numerator, it will be derivative. If it is in the denominator, it will be integral, right? अगर न्यूमरेटर में d आ जाए तो वो डेरिवेटिव होगा, अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो इंटीग्रल होगा. अगर हमारे पास d माइनस 2 d प्लस 2 ऐसा कुछ आ जाए तो हम पहले रैशनलाइज करेंगे, राइट? अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी है, मान लो ऊपर भी हमने स्टेप किया था, अगर 1 ओवर d आ जाता है, यू डोंट वांट टू डू द इंटीग्रल, तो आप इसको रैशनलाइज करके इसको डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हो. ये d ओवर डी स्क्वायर बन जाएगा, आप d स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट? इट्स योर विश. नाउ अब d साइन 3x के साथ भी है. आई एम डूइंग दिस स्टेप, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल्सो. आप सीधा कर सकते हो डेरिवेटिव 1 ओवर 26. अब डेरिवेटिव क्या हुआ साइन 3x का? cos 3x इंटू 3 माइनस 2. अब इसका डेरिवेटिव नहीं होना है क्योंकि इसके साथ d नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, राइट? ये ऐसे ही रह जाएगा. अब आपके पास नाउ दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ वी हैव टू राइट द कंप्लीट सोल्यूशन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड करना है, सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है. ऐसे तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, सॉल्व दिस. इफ इट कम्स लाइक दिस, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, यू हैव टू फाइंड ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल. Therefore complete solution is complementary function plus particular integral is equal to y is equal to e raised to power x c1 cos 2x plus c2 sin 2x. ऐड कर देंगे हम बच्चे, प्लस 1 over 26 3 cos 3x minus 2 sin 3x, right? This is our answer. d cube y over dx cube plus y is equal to sin 3x minus cos square x by 2. Now symbolic form is हम कैपिटल D में कर देंगे d cube plus 1 into y is equal to sin 3x minus cos square x by 2. Now we will write the auxiliary equation is, हम y नहीं लिखेंगे, d cube plus 1 is equal to 0. Now will we have to find the roots. a cube plus b cube का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a plus b a square minus ab plus b square is equal to 0, or you can say a plus b a square plus b square minus ab, right? So this becomes d plus 1 is equal to 0 or d square minus d plus 1 is equal to 0. So it implies d is equal to minus 1 आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा d is equal to minus b plus minus अंडर रूट b square minus 4ac over 2a. तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट
1-4/2। क्यों बना है? क्योंकि a हमारे पास 1 है, b -1 है, c 1 है, राइट। दिस बिकम्स 1 ± √3i/2। नाउ वी विल राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये हमारे पास रूट आ गए हैं, 3 रूट्स आ गए हैं, पावर 3 थी तो 3 रूट्स आ गए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1, दिस इज डिस्टिंक्ट एंड रियल, e⁻⁻x, दिस इज इमेजिनरी रूट। सो पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट में क्या आएगा, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। अगर कन्फ्यूजन होती है तो ऐसे लिख सकते हो आप। पहले रियल पार्ट लिखेंगे x/2, देन c1 हो चुका है, c2 cos √3/2x प्लस c3 sin √3/2x. Now we will find the particular integral. Particular integral is equal to 1/d³ plus 1, और साथ में आपके पास जो टर्म थी साइन वाली वो आप साथ में लिख दोगे, sin 3x माइनस cos स्क्वायर x/2। क्योंकि आपके पास cos स्क्वायर आ रहा है तो इस cos स्क्वायर को चेंज करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2 थीटा का पढ़ा होगा, राइट। 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होंगे। तो फॉर्मूला पहले हम ब्रेक कर लेंगे, फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। sin 3x माइनस 1/d³ plus 1 cos स्क्वायर x/2। जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर पे यूज़ होना है, फर्स्ट टर्म पे नहीं यूज़ होगा, सेकेंड टर्म पे यूज़ होगा। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। हाँ जी, फॉर्मूला इज़ 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। एंगल हाफ हो जाता है तो आप 2 है, हम यहाँ लेफ्ट साइड पे ले आएंगे ओवर में। 1 + cos थीटा/2, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास x में है तो आप थीटा की जगह x लिख लोगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + cos x/2, राइट। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, 1 + cos x/2। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 2 के लिए हम d की वैल्यू, d कितना है, d² इज इक्वल टू -3² मीन्स -9, ये होगा अप्लाई 1/। अब आप देखिए जो यहाँ पे d³ है, इट मीन्स ये पहले ब्रेक होगा d², सॉरी ये ब्रेक होगा हमसे d² इंटू d + 1 sin 3x माइनस 2 हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 2 1/2 d³ plus 1, you can write like this also, just wait, 1/2 1/d³ plus 1 1 + cos x। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम d² को पुट करेंगे -9, ये बन जाएगा -9d + 1 sin 3x माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से ब्रेक हो जाएगा, 1 है तो 1 को हम e⁻0x लिख सकते हैं, -1/2 1/d³ plus 1 इंटू cos x। अगर नहीं समझ आया तो आप यहाँ देखो, हमने इसको ब्रेक कर लिया है, इस टर्म को सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। ये ध्यान रखना है कि बाहर माइनस है तो दोनों में माइनस लगेगा, अगर एक बार माइनस डालना है तो यू हैव टू पुट द ब्रैकेट ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 1/-9d + 1 sin 3x माइनस 1/2। नाउ सी, यहाँ पे भी 1d³ है तो आप 0² या 0 पुट करोगे तो एक ही आंसर आएगा, तो आप पुट कर सकते हो 1/0 + 1, क्योंकि 0 है तो क्यूब को पुट करो, स्क्वायर को पुट करो, आना तो 0 ही है मल्टीप्लाई करके, माइनस 1/, नाउ इट इज d³ 1/d³ plus 1
cos x. Now this is equal to, अभी हमने पढ़ा था अगर डिनोमिनेटर में आपके पास d-1 या d+1 आता है तो आप क्या करोगे, उसको रेशनलाइज. सो वी विल राइट लाइक दिस 1 - 9d इंटू 1 + 9d ओवर 1 + 9d इंटू साइन 3x. हमने रेशनलाइज कर लिया. -1/2. नाउ वी हैव टू पुट हेयर -1/2. नाउ हेयर d, अब यहाँ पे d क्या है, d हम लेंगे 1. d² इज इक्वल टू -1. 1/, वी विल ब्रेक इट, d² इंटू d +1 इंटू cos x. आपको ये यूज़ करना है नेक्स्ट स्टेप में. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 + 9d, a² - b², a² minus 9 9s are 81 d². Sin 3x -1/2 minus 1/2. Now you have to put d² as -1 into d +1 साथ में cos x, right? Now this is equal to 1 + 9d over 1 minus, now d² is -9, so we'll put 81 into -9 sin 3x minus 1/2. Now minus minus, you can take common also. This becomes minus minus multiply हो गया, plus हो गया 1/2. Now here we have taken common d -1 into cos x. Next step is 1 + 9d. Now 1 minus plus 9 into 81, it is, you have to multiply it 1. This is 1 + 729. Now here it is sin 3x. Now this is multiply -2 plus 1/2. Now फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में d -1 आ रहा है तो क्या बनेगा, d +1. हम यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं तो d -1 इंटू d +1, d² -1² इंटू cos x. नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ sin 3x + 9. अब d मीन्स डेरिवेटिव. डेरिवेटिव किसका होना है, sin 3x का. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3x इंटू 3 आ जाएगा ओवर 730 minus 1/2 plus 1/2. Now derivative of cos x is sin x, sorry, minus sin x plus cos x over. Now here it is d² -1. Now here d² is -1, -1, -1. So it becomes sin 3x plus 27 cos 3x over 730 minus 1/2. Now here it becomes, now -1 डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा -1/4 minus sin x plus cos x. Now this is our particular integral. So we have to write complete solution is equal to complementary function plus particular integral. Now this is c1 e raised to power, now we will write c1 e raised to power minus x plus e raised to power x by 2, c2 cos √3/2x plus c3 sin √3/2x plus 1/730 sin 3x plus 27 cos 3x minus 1/2 minus 1/4 cos x minus sin x. This is our answer. Now you can try next question. Question is d³ minus d² plus 4d minus 4 into y is equal to sin 3x. You can write the answer in the comment box.